Long ago, the world was burdened by the rule of demonic kings. They were harassing good people and sages, and ruling the world with the help of their demonic friends. So, planet Earth, Bhumi Devi, went to Lord Brahma to tell him her problems. Lord Brahma went with the demigods to the abode of Lord Vishnu. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, said that he would appear in person to protect his devotees and kill the demons. हे देवकी और मेरे प्रिय मित्र वासुदेव, तुम दोनों को तुम्हारे नए घर में छोड़ना मेरा कर्तव्य है। There was joy and gaiety in the city of Mathura. The city was in a festive mood and was beautifully decorated. Vasudeva, son of Surasen, married Devaki, sister of Kamsa. Kams, you are so foolish. You love your sister so much, but her eighth son will be the cause of your death. मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं उनका नाश कर दूंगा, चाहे वह मेरी प्यारी बहन देवकी ही क्यों ना हो। नहीं मेरे प्यारे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रुको कंस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है और उसे इस तरह नहीं मार सकते। अगर तुम देवकी की हत्या करोगे तो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे और कहेंगे कि कंस ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। तुम उसके भाई और पिता समान हो और कोई भी अपनी प्यारी बहन की हत्या कैसे कर सकता है। अगर हमारी कोई भी संतान होती है तो हम उसे तुम्हें दे देंगे। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, ठीक है कंस? पहरेदारों, उन्हें कैद कर लो। In this way, Vasudeva tried to pacify Kamsa by good instruction as well as by philosophical discrimination. But Kamsa was not to be pacified because his association was demoniac. Because of his demoniac association, he was a demon, although born in a very high royal family. A demon never cares for any good instruction. He is just like a determined thief. One can give him moral instruction, but it will not be effective. Similarly, those who are demoniac or atheistic by nature can hardly assimilate any good instruction, however authorized it may be. That is the difference between demigods and demons. Those who can accept good instruction and try to live their lives in that manner are called demigods, and those who are unable to take such good instruction are called demons. Failing in his attempt to pacify Kamsa, Vasudeva wondered how he would protect his wife, Devaki. When there is imminent danger, an intelligent person should try to avoid the dangerous position as far as possible. But if, in spite of endeavoring by all intelligence, one fails to avoid the dangerous position, there is no fault on his part. One should try his best to execute his duties. But if the attempt fails, he is not at fault. Vasudeva thought of his wife as follows: for the present, let me save the life of Devaki. Then later on, if there are children, I shall see how to save them. He further thought, if in the future I get a child who can kill Kamsa, just as Kamsa is thinking, then both Devaki and the child will be saved, because the law of providence is inconceivable. But now, some way or other, let me save the life of Devaki. हे देवकी, इस पुत्र को हमें कंस को सौंप देना चाहिए। हो सकता है इसे प्रसन्न होकर वो हमें कारागार से मुक्ति दे दे और हमारे बच्चों को जीवन दान दे दे।
providence is inconceivable. But now, some way or other, let me save the life of Devaki. हे देवकी, इस पुत्र को हमें I don't know the play. I think so. It might just be technical difficulties. Actors still getting ready. It's okay. कंस को सौंप देना चाहिए. Avoid the danger. As Kamsa's thinking, then both Devaki and the child will be saved, because the law of providence is inconceivable. But now, some way or other, let me save the life of Devaki. हे देवकी, इस पुत्र को हमें कंस को सौंप देना चाहिए. हो सकता है इसे प्रसन्न होकर वो हमें कारागार से मुक्ति दे दे और हमारे बच्चों को जीवन दान दे दे. नहीं स्वामी, मैं अपने पुत्र को अच्छे से देखना चाहती हूँ, प्रेम करना चाहती हूँ. अभी तो मैंने उसे अच्छे से अपना दूध भी नहीं पिलाया. Kamsa went to his court and sat, and then began to worry about his death. His associates, Janor and Mushtik, advised him to kill Devaki, since she was the root of all his problems. प्रणाम महाराज कंस, ये लीजिए हमारा पहला पुत्र. मेरे वचन के अनुसार मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ. प्रणाम वसुदेव, मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ. आप इस बच्चे को रख सकते हैं. धन्यवाद महाराज. कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे. हरे 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 कृष्ण का नाम ले सकोगे. हरे अगर कृष्ण का नाम दे सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है. कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे. हरे कृपा हो तभी कृष्ण का नाम हरे 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 हरे. जग के भोगी क्या जाने क्या है असली कृपा. क्या है असली कृपा. दुनिया की जगमग में ही उनका सारा ज्ञान टिका. हरे हरे. आपकी चिंता का क्या कारण है महाराज? आप काफी चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा. मेरे सभा के मंत्रियों का कहना है कि देवकी को ही मार दो, पर ऐसा करने से मैं लोक निंदा और उपहास का विषय बन जाऊंगा. अब आप ही इसका निवारण करो मुनिवर. महाराज कंस,
आपको मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है? मृत्यु तो आपके जन्म के साथ ही पैदा हो चुकी है। जिस दिन से आपने जन्म लिया उसी दिन से आपकी मृत्यु शुरू हो गई। मान लीजिए आप 25 वर्ष के हैं, इसका अर्थ है कि आप 25 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। हर क्षण हर पल आप मर रहे हैं, फिर आपको मृत्यु से इतना डर क्यों होना चाहिए? अंतिम मृत्यु अवश्यम भावी है। आप आज मर सकते हैं या 100 साल बाद, आप मृत्यु से बच नहीं सकते। आपको इतना डर क्यों होना चाहिए? वास्तव में मृत्यु का अर्थ है वर्तमान शरीर का विनाश। परंतु आपने मुझसे अपनी समस्या का हल पूछा है, तो मेरे हाथ में एक कमल का पुष्प है और मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि इसमें पहली और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। नारायण नारायण। At that time, the great sage Narada came to Kamsa. He informed of Kamsa's becoming compassionate to Vasudeva and returning his firstborn child. Narada was very eager to accelerate the descent of Lord Krishna as soon as possible. हे देवकी, अपने अपने इस पहले पुत्र को मुझे दे दो। नहीं भैया, दया कीजिए, इस नन्हे से बालक ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसे माफ कीजिए। आकाशवाणी के अनुसार मेरी 8वीं संतान से ही आपको खतरा है। देवकी, अपने पुत्र को मेरे हवाले करो। मैं नहीं जानता जो मैंने पहले किया, लेकिन मुझे इसके ठिकाने लगाना ही होगा। चाहे यह तुम्हारी पहली संतान हो या 8वीं संतान, इसमें से कोई भी विष्णु हो सकता है। तो चाहे इसमें से कोई भी हो, मुझे इनका सर्वनाश करना होगा ताकि ये मुझे भविष्य में खत्म ना कर सके। Hey, hey, hey. Just punt the baby. वो विष्णु मुझे क्या मारेगा? मैं ही उसका काल हूँ। उसके सारे अवतारों का अंत करूंगा मैं जानता हूँ कि तुम और वासुदेव प्रार्थना कर रहे हो कि तुम्हारे पुत्र द्वारा मेरी मृत्यु हो सके। तुम्हारे सारे पुत्रों को वध करूंगा मैं, अपने दूसरे पुत्र को मुझे दो देगी। After killing 7 of their children, now it was time for the Lord to appear in the womb of Devaki. मैं आपसे और देवकी से बहुत प्रसन्न हूँ वसुदेव। ये मेरा आपके पुत्र के रूप में तीसरा जन्म है। इसके पहले मैं स्वयंभू मनवंतरा में आप वसुदेव प्रजापति थे और देवकी प्रश्नी थी, और आप दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की ताकि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सको। उस समय मैं आपके पुत्र के रूप में आया। फिर उसके बाद आप देवकी देवहूति बनी और वसुदेव आप कश्यप मुनि बने, और उस समय मैं आपके पुत्र कपिल के रूप में आया। और इस समय मैं आपके पुत्र रूप पूर्ण पुरुषोत्तम
कृष्ण के रूप में आ रहा हूँ। मेरे प्रभु, आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और आप सभी राक्षसों को मारने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन अब कंस ने आपके सभी भाइयों को मार डाला। अगर वो आपको देखेगा तो अवश्य आपको नुकसान पहुंचाएगा। Thus, Lord Krishna assumed the form of the most beautiful infant, wearing yellow silken clothes and beautiful ornaments. And this day we celebrate as Janmashtami, or the appearance of Lord Krishna. चिंता मत करो, मैं यहाँ सब कुछ सभी लोग अभी सो रहे हैं। मैं इस बच्चे को यहाँ रख दूंगा और इस बच्चे को कंस के जेल खाने में ले जाऊंगा। धन महाराज, आइए हमारे पुत्र को देखिए। यशोदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारा पुत्र कितना सुंदर है। मैंने आज तक इतना अलौकिक शिशु कभी नहीं देखा। मेरे प्यारे मित्रों, आइए, आप सभी का स्वागत है। आइए और मेरे पुत्र के जन्मोत्सव का आनंद उठाइए। That's okay. ये देखो यहाँ खेल रहा है कृष्णा। Oh wow! Cool. भयो जय यशोदा लाल की।
Okay, so it's the Mridanga performance. Thank you, everyone. I was dancing. I felt a big butt crack. Like this, and I thought, I'm so sorry. Thank you, everyone. Haribo! Haribo! To the first part. चीजें